Good morning, everyone. सभी को सुप्रभात। Today we want to look at one of the values that we were talking about. और आज हम एक मूल्य को देखने वाले हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। So every church has some distinctives or values that they hold together so that they are together pulling in one direction and bringing glory to God. और हर एक कलीसिया में कुछ बातें हैं जिनको वो साथ में लेकर चलते हैं और वो साथ में चलने की वजह से वो आगे बढ़ते हैं। So we had decided we'll go through all the values that we hold together as dear to us as a church and as regions beyond. तो वो कुछ मूल्य हैं जो हम हमारे हृदय के बहुत करीब रखते हैं एक रीजन्स बियॉन्ड और वन नेशन कलीसिया होने के नाते। And Errol preached wonderfully 2 weeks back about being faithful to the scripture, the first one. और एरल ने बहुत सुंदर सा प्रचार किया था 2 हफ्ते पहले, और वो है वचनों के साथ विश्वास योग्य रहना, उस मूल्य को लेकर। So today I want to look at the second one. तो आज हम दूसरा मूल्य देखेंगे। It is called thrilled and motivated by grace. और वो है अनुग्रह के द्वारा उत्साहित और प्रेरित। We are motivated by grace. हम अनुग्रह के द्वारा उत्साहित। One can ask, what is this grace of God? तो एक सवाल पूछ सकता है, क्या है ये अनुग्रह? It's a huge subject when we look at the Bible. जब हम बाइबल को देखते हैं उस विषय को लेकर तो काफी बड़ा ऐसा विषय है। So come with me to Acts chapter 11. तो आइए हम प्रेरितों के 11वें अध्याय में जाते हैं। So I'm going to read one verse in English. Michael will read the next verse in Hindi, but follow with us. और हम एक एक करके वचन पढ़ेंगे हिंदी अंग्रेजी में, और हमारे साथ आप ध्यान लगाए रहे। So I think there are 12 verses I want to read. और 12 वचन है जो हम पढ़ने चाहते हैं। So verse 11 of Acts chapter, verse 19 of Acts chapter 11. और 19वां वचन है, फ्रैंक को पढ़ रहे हैं। Now those who have been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. और 20वां वचन, परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। Verse 21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. और 22वां वचन, तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। Verse 23, when he arrived and saw the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. और 24वां वचन, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. 26वां वचन, और जब उनसे मिले तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। During this time, some prophets came from Jerusalem to Antioch. 28वां वचन, उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। The disciple, each one was decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. और 30वां वचन, और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। So this church was planted as a result of the persecution that happened in Jerusalem. और यरूशलेम में जो सताव हुआ उसकी वजह से यह कलिया का बोना हो गया। So people were scattered, so they went traveling, from Jerusalem to Antioch was almost 500 kilometers, and they traveled so far preaching the gospel. और यरूशलेम से अंताकिया जो है वो करीबन 500 किलोमीटर दूरी पर था, और उस सताव की वजह से जब लोग दूर गए तब जाने में रास्ते में वो सुसमाचार बांटते रहे। And this church became very famous
And the news reached Jerusalem, and the apostles took notice of what was happening in Antioch. और यह जो कलीसिया है वह काफी सामर्थ्यशाली कलीसिया बन गई, और यह जो खबर है वो यरूशलेम में पहुंच गई, और वहां के जो प्रेरित थे उन्होंने इस बात को जान लिया. So Jerusalem apostles wanted to know what is going on. So they sent Barnabas to Antioch to see what was happening. तो यरूशलेम के जो प्रेरित थे उन्होंने जान लिया कि कुछ खास बातें हो रही, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया में जाने को कहा. So when Barnabas arrived at the church plant in Antioch, he saw something. और जब अंताकिया में बरनबास कलीसिया में पहुंच गया तब उसने कुछ खास बातें देखी. Verse 23 it says, when he arrived, he saw the grace of God. 23 वचन कहता है वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर वह आनंदित हुआ. In other translation says he saw the evidence of the grace of God. और एक अनुवाद है उसमें लिखा है कि उसने परमेश्वर की उस अनुग्रह को वहां पर देखा. He saw the grace of God at work. और अनुग्रह वहां कार्य कर रहा था. He saw the grace of God in action. और पूरी तरह से वो लोगों में कार्यरत हो गया था. It was evident in that church. और वो पूरी तरह दिख रहा था वहां पर कलीसिया में. He saw people thrilled and motivated by God's grace. और उसने देखा कि लोग जो है अनुग्रह के द्वारा प्रेरित और उत्साहित हो गए थे. So what is this grace of God? तो यह अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह है क्या? You know, people say grace can be an acronym, which mean all the words have meaning. Every letter has meaning. और लोग कहते हैं कि अनुग्रह का जो शब्द है अंग्रेजी में जो अक्षर है वो हर अक्षर का कुछ अर्थ होता है. Grace, G-R-A-C-E. और ग्रेस यानी अंग्रेजी में GRACE. You know, God's riches at Christ's expense. और एक प्रकार से परमेश्वर का जो धन है वो मसीह के कीमत की वजह से हमें मिला है. So I want to just look at for the next 30 minutes, what did Barnabas see? तो आने वाले 30 मिनटों में मैं बताना चाहता हूँ बरनबास ने क्या देखा. He saw people. और उसने लोगों को देखा. And he saw the grace of God at work. और उसने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह वहां कार्य कर रहा है. So I want to just share 7 indicators of the grace of God for us to understand what is this grace all about. तो वहां पर जो 7 ऐसे एक प्रकार से सूचक बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा हम समझेंगे अनुग्रह क्या है. You know, this will help us to understand more about the grace of God. और यह हमें मदद करेगा अधिक से कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम समझ पाए. So the first one, he says, he saw people who celebrated the gospel. और सबसे पहला बात है कि उन्होंने वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आनंद किया. In verse 21 it says, the Lord's hand was with them and a great number of people believed and turned to the Lord. 21वां वचन कहता है कि प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे. Here was a people who were thrilled with the free gift of salvation. और यहाँ लोग ऐसे थे उन्होंने परमेश्वर के वरदान को जो मुफ्त में था उसको पाया था. And they were eager to share this gift with others. और वो काफी प्रोत्साहित थे यह जो वरदान है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए, बांटने के लिए. People were getting saved. लोग उद्धार पा रहे थे. As they were sharing the gospel, they were turning to God. और जैसे वो स्वीकार कर रहे थे परमेश्वर के उस बात का और वो उद्धार पा रहे थे, परमेश्वर की ओर मुड़ रहे थे. And they saw people receiving such amazing joy and peace in their lives. और वो देख रहे थे कि लोग जो है एक प्रकार से काफी आनंद और खुशी पा रहे थे अपने जीवन को लेकर. There's great celebration. वहाँ बहुत सारा आनंद उत्सव हो रहा There's था. great testimonies. और बहुत सारी गवाहियां वहाँ आ रही थी. And people were celebrating this wonderful gift of salvation. और लोग जो है उसमें आनंदोत्सव मना रहे थे यह जो उद्धार का जो वरदान है उसको लेकर. You know, Luke chapter 15 verse 10, it says, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.
और लूका के 15वें अध्याय का 10वां वचन उसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। You know, brothers and sisters, there is nothing more exciting than to see people coming into the knowledge of the salvation that comes through Jesus Christ. भाई और बहनों, इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं है। हालांकि जब कोई एक खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को पाने के द्वारा आनंद उत्सव And मनाता their है lives are transformed. और उनके जीवन परिवर्तित होते हैं। And this morning I want to ask you, are you excited about your salvation? और इस सुबह मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप आपके उद्धार को लेकर आनंदित हैं? Because if you're excited about your salvation, then you will share that news, the good news to others as अगर well. आप आपके उद्धार को लेकर प्रोत्साहित हैं, तब आप दूसरों को यह उद्धार की बातें बांटोगे। Ephesians chapter 2 verse 4 and 5, this is what it says, but God being rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we are dead in our transgression, made us alive together with Christ, and it is by grace you have been saved. Yeah. Out of the billions of people, God chose you. और हजारों लाखों की तादाद के लोगों में से परमेश्वर ने तुम्हें चुना है God chose me. और परमेश्वर ने मुझे चुना है। Hallelujah. हालेलुया। He saved you. और उसने आपका उद्धार किया है, He adopted you. आपको गोद ले लिया है He put his spirit in you. और उसका आत्मा आपके ऊपर उंडेला है। This is the grace of God. और यही परमेश्वर का अनुग्रह You know, one है। of the song it says it is unending, unfailing, unlimited, unmerited grace of God. और एक गीत में इस अनुग्रह को ऐसे गाया है, वह जो अमर्याद है, जो ऐसे लायक नहीं थे उनको दिया है, और इस प्रकार से काफी महान ऐसा यह अनुग्रह है। Hallelujah. हालेलुया। That's why we worship God. और इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते Week हैं। after week we come and say, Lord, thank you for this amazing salvation that you have given to एक us. सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह हम आकर धन्यवाद कहते हैं, गीत गाते हैं, कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद इस उद्धार के लिए। Hallelujah. हालेलुया। God loves us because he loves us. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम करता है। Not because, we did anything good that made him to love us. और इसलिए नहीं कि हमने कुछ अच्छी बातें की, उसलिए वो हमसे प्रेम करता Or है। is there anything lovable in us so that God could love us? या हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हम पर प्रेम करेगा। God sent Jesus because of his love. परमेश्वर ने यीशु को भेजा उसका जो हमारे प्रति प्रेम है उसकी वजह से, He saved us because of his love. और उसने हमें उद्धार दिया अपने प्रेम के खातिर, He works in us because of his love. और वो हमें कार्य करता है उसके प्रेम के खातिर। He will stay with us because of his love. वो हमारे साथ रहेगा उसके प्रेम के खातिर, And he will take us to be with him forever because of his love. और वो हमें साथ ले जाएगा हमेशा के लिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। Titus chapter 2 verse 11, it says, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. और तीतुस का दूसरे अध्याय का 11वां वचन हमें बताता है कि क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। Hallelujah. Hallelujah. It is the grace of God that has appeared और यह जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो प्रकट हुआ है, that offers salvation to all people. और वो सब मनुष्यों को उद्धार देता है। The Bible says we all fell short of the glory of God. और बाइबल में लिखा है कि हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। God's standard was here, but we never managed to reach the standard of God. और परमेश्वर का जो स्तर है वो यहाँ पर है, ऊंचे स्तर पर है, हम उस तक कभी पहुंच नहीं पाए। So, but the grace of God enabled us to reach there. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमें उस स्तर पर पहुंचने के लिए मदद किया। Like in the school, when we have failed because of just 2 or 3 marks, and the teacher gives us the grace mark so that we are passed. और जब हम परीक्षा में इस प्रकार से 2 या 3 मार्क के लिए हम फेल हो जाते हैं, तब टीचर जो है हमें ग्रेस मार्क्स देती है और हमको पास कर देती है।
Yeah, one of the first indicators of the grace of God in our life is that we are a people who are excited about what God has done in our lives. और सबसे पहला जो संकेत है हमने जो अनुग्रह पाया है उसका वो कि हम काफी प्रोत्साहित ऐसे लोग हैं What God has done for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। Today we are sons and daughters of God. आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Amazing promises have been given to us. और अद्भुत ऐसे प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दी है। That's what Barnabas saw there in Antioch. और यही बातें बरनबास ने वहां पर देखी अंताकिया में। He saw the grace of God at work. और परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर कार्य कर रहा Because था। he saw people who were celebrating the gospel. क्योंकि उसने देखा कि लोग उस उद्धार की बातों को लेकर आनंदोत्सव मना रहे What थे। did Barnabas see in Antioch? अंताकिया में बरनबास ने क्या देखा? Secondly, he saw people who were excited about diversity. और दूसरी बात जो उसने देखी वो है कि लोग भिन्नता को लेकर आनंद कर रहे थे। You know, thrilled with the qualification of Gentiles in the plan of God. और अन्य जाति के लोगों को वहां पर उसमें शामिल होना इस बात को लेकर लोग आनंदित हो गए थे। You know, the majority of the people who were there were Greeks, and they were excited because God has included them in the plan और of salvation. ज्यादातर लोग जो वहां पर थे वो यूनानी थे और उनको देखकर वो सब लोग इतने आनंदित और प्रोत्साहित हो गए थे। There were Gentiles who were far away from God. और वहां पर अन्य जाति के लोग थे वो परमेश्वर से कहीं दूर ऐसे लोग थे। They didn't know God. वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। The Jewish people thank God for 3 things every day in their prayer. यहूदी लोग ऐसे होते हैं वो अपनी प्रार्थना में 3 चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। You know, one of them was that they were not born as Gentiles. और एक बात का वो धन्यवाद करते हैं वो यह है कि वो अन्य जाति में जन्म नहीं लिए। But now God has assured salvation to the Gentiles. लेकिन अब परमेश्वर ने अन्य जातियों के पास सुसमाचार लाया है, You उद्धार know, लाया है। thousands were coming to know Jesus. और हजारों की तादाद में यीशु को लोग जान रहे थे। You know, no one is beyond the saving power of और Jesus. कोई भी परमेश्वर का जो उद्धार के द्वारा सामर्थ्य से बचाना है उसे पार नहीं है। The worst sinner can find forgiveness and new life in Jesus और Christ. सबसे एकदम नीचतम ऐसा पापी भी परमेश्वर के उस उद्धार के द्वारा आनंद पा सकता है। Our God is an all-inclusive God. हमारा परमेश्वर है सबको शामिल करने वाला He परमेश्वर है। wants everyone from everywhere to be saved. वह चाहता है कि हर जगह से हर प्रकार के लोग उद्धार पाए। You know, here it's not only the Gentiles were getting saved, but they were living together. और यहाँ अन्य जाति के लोग जो है वो सिर्फ उद्धार ही नहीं पा रहे थे बल्कि वो दूसरों के साथ साथ में रह रहे थे। They were loving one another. वो एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। Jews and Gentiles living together. यहूदी और यूनानी साथ में रह रहे थे। Hebrews and Greeks living together. और इब्रानियों और यूनानी साथ में रह रहे थे। They were eating together. और साथ में खाना खा रहे थे। You know, there were people who were arch enemies. They never had fellowship with each other. और वहां पर ऐसे लोग थे जो पहले में वो एक दूसरे के पूरे विरोध में थे, साथ में मिल नहीं पाते थे। Now they have become friends. लेकिन अब वो दोस्त बन गए हैं। Barnabas saw this kind of unity that he had never seen anywhere else. और बरनबास ने इस प्रकार की एकता देखी जो उसने और कहीं पर नहीं देखी थी। You know, there were Jews and Gentiles, slaves and free. और वहां पर यहूदी थे, यूनानी थे, गुलाम थे और आजाद लोग भी थे। Rich and poor, men and women. गरीब और अमीर लोग थे, पुरुष और स्त्रियां भी थे। Priests and, you know, people who were not priests, laity, they were living together, they were eating together, they broke bread together. याजक थे और जो साधारण से लोग थे वो साथ में मिलकर वो रोटी तोड़ते थे। This is a miracle of miracle. यह चमत्कारों का चमत्कार है। This could only happen because of the cross of Calvary and what Jesus did. और यह सिर्फ यीशु का जो कलवरी का क्रूस है उसके कार्य के द्वारा और उसी की वजह से हो सकता है। Matthew 27 verse 51 it says, and behold, the curtain of the temple was torn in two
flew from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. It says the curtain was torn from top to bottom. Every wall of hostility was broken. हर एक जो विरोध की दीवारें थी वो टूट गई। Imagine in our nation, और कल्पना करो हमारे देश में Hindus, Muslims, Jains, Sikhs, Jews, Catholics, all fellowshipping together. और इस प्रकार के अलग अलग धर्म के लोग साथ में मिलकर वो परमेश्वर की आराधना करें, Because they have found salvation in Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह में उन्होंने उद्धार को पाया है। Imagine the American, the Chinese, the Greek, the Europeans. और कल्पना करो कि अमेरिका के लोग, चीनी लोग, यूरोप के लोग साथ में, Koreans, Indian, Pakistanis, they were all fellowshipping together. और कोरिया के, पाकिस्तान के, भारत के साथ में मिलकर है, Loving God and loving one another. और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को भी प्रेम करते हैं। This is what it said in Ephesians 2. और इफिसियों के दूसरे अध्याय में ऐसा ही लिखा है। Verse 14 to 16, it says, For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulation. His purpose was to create in himself one humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both to them to God through the cross, by which he put to death their hostility. No government can achieve what the grace of God can achieve. और कोई भी सरकार इस बात को पूरा नहीं कर सकती जो परमेश्वर का अनुग्रह कर सकता है। No institution can achieve what God's grace can achieve. और कोई संस्था है इस बात को नहीं कर पाती जो परमेश्वर के अनुग्रह ने किया है। That's why it's called the grace of और God. इसलिए वह परमेश्वर का अनुग्रह कहलाते हैं। This is grace. और यही अनुग्रह है। When there is unity in diversity, that is the grace of God. जब भिन्नता में एकता है वही परमेश्वर का अनुग्रह है। Hallelujah. हालेलुया। Heaven will be full of people from every nation, every race, every tribe, and every tongue worshiping Jesus. और स्वर्ग में इस प्रकार के लोग होंगे, अलग जाति, अलग भाषा, अलग वर्ण, अलग स्वरूप, इस प्रकार के सब साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। When we fellowship like that, we are reflecting heaven on earth. और जब हम उस प्रकार से संगति करते हैं तो हम उस परमेश्वर के स्वर्ग की बातों को धरती पर प्रकट करते हैं। Man, Barnabas saw that working in Antioch. आमीन। और बरनबास ने अंताकिया में ये बातें देखी हो रही What थी। else did Barnabas see in Antioch? और क्या अंताकिया में उसने देखा? You know, he saw the community of the Spirit, और वो समाज ऐसा जो आत्मा का समाज था, where love was in action. जहाँ पर प्रेम प्रकट हो रहा था। He saw people who were motivated by the Spirit, not by the law. और ऐसे लोग थे वहां पर जो व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे थे बल्कि आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। You know, after we get saved, we can, you know, as we fellowship with God, we see a lot of failings in our own life. और जैसे हम परमेश्वर को अपनाते हैं, उसमें बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। We see our weaknesses and we see the rebellions that is in us. और हमारे अंदर जो कमजोरी है और एक प्रकार से विद्रोह की बातें हैं वो हम देखते हैं। But as we understand the grace of God, we will be so thrilled that God still loves us and God is still for us. और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि तब भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमको प्रकट करता है। And His undeserved favor is upon us. और उसकी जो कृपा है जिसके हम लायक नहीं है वो हमारे ऊपर है। And that's why today He has given us His Spirit. और इसलिए आज उसने हमें उसका आत्मा हमें दिया है। You know, He has given us His word. और वो वचन दिया है उसने हमें। But He's also given us His Spirit. और उसके साथ उसने पवित्र आत्मा भी हमें दिया है। Because the Spirit gives life. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो जीवन देता है। The law kills, but the Spirit gives life. और व्यवस्था जो है वो मारती है लेकिन आत्मा है जीवन देता है। You know, every time we compare ourselves with others, we compare with the standards of this world, we hear the Spirit saying,
You know, it is by grace you have been saved. It is you are who you are is by the grace of God. और हम जब दुनिया में देखते हैं, एक दूसरों के साथ तुलना करते हैं, तब एक प्रकार से परमेश्वर हमें कहता है कि तुम उस अनुग्रह के द्वारा जी रहे हो, उस आत्मा के द्वारा तुम कमजोर नहीं हो, मैं तुम पर प्रेम करता हूँ। God doesn't love us because we read the Bible every day, we pray every day, we fast and we do a lot of spiritual activities. God loves us because He loves us. और परमेश्वर हम पर इसलिए प्रेम नहीं करता है कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या परमेश्वर की बातें करते हैं, बल्कि वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। We are motivated by grace and we are motivated by the love of God. हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रेरित होते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित होते हैं। If we are doing anything to obtain God's favor, अगर हम परमेश्वर की कृपा पाने के लिए कुछ अगर करते हैं, the Bible says, you know, we become legalistic. We fall from the grace of God. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक प्रकार से व्यवस्था की बातों को करते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे गिर जाते हैं। You know, we strive to get God's approval. और हम एक प्रकार से कोशिश करते हैं परमेश्वर से सिद्धता पाने के लिए। But when we understand the grace of God, लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, we don't have to be legalistic. We don't have to, you know, follow a rule book, the laws. तो हमें परमेश्वर के उस नियमावली के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है, उसकी व्यवस्था के पीछे नहीं भागना पड़ता है। We follow the Spirit. हम आत्मा के पीछे चलते हैं। We follow the Word of God. और परमेश्वर के वचन को लेकर हम चलते हैं। And just because we know God loves us and He is for us. और यह इसलिए कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए है और वो हमसे प्रेम करता है। You know, in Galatians, Paul is tackling this big problem that was facing the church at that time because they were falling away from the grace of God and they're getting into legalism. और गलातियों के अध्याय में हम देखते हैं वहां पर एक प्रकार से वो परमेश्वर के अनुग्रह से कम पड़ रहे थे। And they were following the legalism. और उसकी वजह से वो व्यवस्था की बातें कर रहे थे। You know, they were kind of forcing people to get circumcised. और वो लोगों पर दबाव डाल रहे थे कि वो खतना करें। And they were saying, you got to believe the gospel, but you also need to follow the law. You need to get circumcised. और वो बोल रहे थे कि हाँ आपको यीशु के पीछे चलना है, लेकिन उसके अलावा आपको खतना करना है, व्यवस्था को भी मानना है। And Paul was very angry. और पौलुस काफी गुस्सामंद हुआ। And Paul was, you know, really dealing with this whole aspect of legalism in the book of Galatians. और गलातियों की किताब में पौलुस एक प्रकार से वहां पर समझाता है यह जो व्यवस्था की बातें है उसको लेकर कैसे है वो समझा रहा था। You know, Jesus plus anything is not the gospel. यीशु और कुछ बातें जोड़ना यह सुसमाचार नहीं है। Our motivation is the grace of God. और हमारा जो प्रोत्साहित करने वाला बात है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। You know, people in Antioch was motivated by love, not by works. और अंताकिया के लोग जो थे वो काम के द्वारा नहीं उत्साहित हुए थे, बल्कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उत्साहित हुए थे। Not, you know, they were doing things not because they have to. They were doing things because they love to. और वो इसलिए नहीं कर रहे थे चीजों को क्योंकि उनको चीजें करनी ही थी, बल्कि वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो करना चाहते थे। Okay, we don't do things because we have to. We do things because we love to do. और हम चीजें इसलिए नहीं करते हैं कि हम करना चाहते हैं, बल्कि हम करते हैं क्योंकि हम प्रेम से उन बातों को करना चाहते हैं। Galatians 2 verse 21. और गलातियों के दूसरे अध्याय का 21वां वचन। It's Paul says, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. और पौलुस कहता है कि जो धार्मिकता है वो अगर हम व्यवस्था से पाते हैं तो यीशु का मृत्यु कुछ कीमत का नहीं है। So grace of God is so amazing, brothers and sisters. भाई और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह इतना महत्वपूर्ण है। Your sin will not disqualify you. और आपका पाप है जो आपको उस बात से दूर नहीं रखेगा, Will not separate you from the love of God. परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होने देगा। When we sin,
we come to God and we seek His forgiveness and we become right with God again. और जब हम पाप करते हैं और हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, तब हम परमेश्वर के साथ ठीक हो जाते हैं और उसके करीब आ जाते हैं। You know, G.K. Chesterton says this is God's furious love towards His people. और जी.के. चेस्टरटन करके एक महान व्यक्ति है, उसने ऐसा कहा है कि यह परमेश्वर का बहुत तेज ऐसा प्रेम है जो हमारे पे। God's furious love. Hallelujah. परमेश्वर का यह जो बलवंत ऐसा एकदम तेज ऐसा जो प्रेम है वो हमें So हमारे लिए है। Barnabas saw a community that is motivated by the Spirit and the love of God. तो बरनबास ने ऐसे समाज को देखा जो आत्मा की अगुवाई में आत्मा से प्रेरित हुआ था, प्रोत्साहित हुआ। So let me just quickly go through the next few points. What else Barnabas see? तो जल्दी से हम देखेंगे आगे वाले जो मुद्दे हैं और क्या बरनबास ने देखा। He saw people who were released in their giftings. और ऐसे लोग देखे उसने जो अपने वरदानों में आगे बढ़ रहे थे। You know, Jerusalem apostles sent Barnabas to Antioch to see what was happening there. और यरूशलेम के प्रेरितों ने बरनबास को वहाँ क्या हो रहा है वो देखने के लिए भेजा। He was released to go there. और उसे आजादी मिल गई वहाँ And जाने when के he लिए। went there, he didn't see one man leading. He saw everybody was released into ministry. और जब वो वहां पहुंचा तब उसने ऐसा नहीं देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, सब साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। And not only that, Barnabas goes and get Paul from Tarsus and he involves him in the ministry. और इतना ही नहीं बल्कि तर्शीश से पौलुस को वो लेकर जाता है, वहां पर साथ में मिलकर वो कार्य करते हैं। You know, the law controls, but the grace releases people. व्यवस्था जो है वो आपको एक प्रकार से नियंत्रण में रखती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है वो आपको आजादी देता है। Yeah, the grace of God. God, you know, when Barnabas came, he saw people who were released into their gifting and everybody was functioning, everybody was being used for the purposes of God. और बरनबास ने वहां पर देखा उस समाज में, उस कलीसिया में, कि हर एक लोग अपने वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में मिलकर सभी वरदानों का वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है ऐसा नहीं हो रहा था। So grace releases people, it doesn't control them. तो अनुग्रह जो है लोगों को आजादी देता है, उनको बंदी या नियंत्रण में नहीं रखता है। You know, we heard this word, discover, develop, deploy. और हमने वो शब्द को सुना था कि Discover. और खोज करना और विकसित करना और उनको कार्यरत करना। So that's the word for us. और यही जो शब्द है वो हमारे लिए है। As we release, we see more of the grace of God. और जैसे हम लोगों को आजादी देखेंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह को और देखेंगे। What else did Barnabas see? और क्या देखा He बरनबास ने? saw people who were open to the apostolic and the prophetic ministry. ऐसे लोग थे, उनको देखा उसने कि जो प्रेरित रूपी सेविका को कबूल करने के लिए और भविष्यवाणियों को स्वीकार करने के लिए लोग थे। It says Barnabas and Paul was there for a long time, for one complete year that they were there teaching the people. और बरनबास और उसका साथी वो एक साल वहां पर उनको सिखा रहे थे और प्रशिक्षित कर रहे थे। And it says the disciples were called Christian first at Antioch. और शास्त्र में लिखा है कि चेलों को पहली बार वहां पर अंताकिया में मसीही कहलाया गया। People who are open to the Ephesians 4 ministries. और ऐसे लोग जो इफिसियों 4 की जो बातें हैं उसके लिए वो खुले थे। Apostles, prophet, evangelists, pastors and teachers. और प्रेरित, उपदेशक, भविष्यद्वक्ता, प्रचारक और भेड़ों को रखने वाला पासवान, इस प्रकार से। And because they knew that is what will bring them to maturity and the fullness of Christ. क्योंकि वही बातें उन्होंने समझा कि वो परमेश्वर के परिपक्वता के पास उन्हें लेकर आएगी। They knew no church can come or no individual can come to maturity without being influenced by these gifts. और वो समझ रहे थे कि इन वरदानों के सिवाय वो उस परिपक्वता में नहीं पहुंच पाएंगे। And you will see in verse 27 and 28, Agabus the prophet, coming into the church and prophesying there's going to be a great famine.
और हम देखते हैं कि 27 और 28वें वचन में वहां पर अगबुस जो था उसने खड़े होकर उनको प्रेरणा दी कि सारे जगत में एक प्रकार से अकाल पड़ा है, because they received the prophetic ministry. क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी के उस वचन को स्वीकार किया They received the prophecies with faith and they acted in faith. और उन्होंने भविष्यवाणी को विश्वास के साथ स्वीकार किया और उसको लेकर उन्होंने कार्य भी किया। So, if you want to see the grace of God at work, तो अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को कार्य में देखना चाहते हैं, we see a people who are open to the different ministries. तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग थे वहां पर जो अलग अलग सेविकाओं को लेकर वो खुलापन में थे। The plurality of, not just one man ministry, but there are more people, different gifts working, bringing people to maturity. और वहां पर अलग अलग वरदानों को साथ में कार्य में होते हुए लोगों ने वहां पर देखा, सब अलग अलग वरदान साथ में कार्य कर रहे What थे। else Barnabas see? और क्या बरनबास ने देखा? Two more things. The sixth one are people who are prepared for mission. और छठी बात, लोग जो मिशन के लिए कार्य में थे। Grace of God prepares us for action. और परमेश्वर का अनुग्रह हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। For one whole year they were being trained, the whole church being trained. और पूरे एक साल भर में वो जो कलीसिया है वो प्रशिक्षण पा रही थी। Daily they were being taught the word of God. प्रतिदिन वो परमेश्वर का वचन से सीख रहे थे। Barnabas and Paul, the great apostles, they were teaching the word of God. और बरनबास और पौलुस जो बड़े प्रेरित थे वो परमेश्वर के वचन को सिखा रहे थे। And people were moving out and preaching the gospel. और लोग जो है बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। They were planting churches wherever opportunities opened up. They were planting churches. और जहाँ कहीं पर वहाँ पर उनको मौका मिलता था वहाँ पर वो कलीसिया की शुरू करते थे। And they were making Jesus famous. और वो यीशु को प्रसिद्ध कर रहे थे। Grace of God will always motivate you to go. और परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमेशा आपको जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। Go for mission. और मिशन के लिए जाओ। The Great Commission, Jesus said, go and make disciples. और जो बड़ा आदेश है जो यीशु ने हमें दिया है वो जाओ और लोगों को चेले बनाओ। In 1 Corinthians chapter 15 verse 10. और 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 10वें वचन में This is what Paul says. पौलुस ऐसे लिखता है, But by the grace of God I am what I am. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से And His हूँ। grace to me was not without effect. और उसका जो अनुग्रह है वो व्यर्थ नहीं हुआ। Now I work harder than all of them. अब मैं सबसे बढ़कर परिश्रम करता हूँ। Not I, but the grace of God that was with me. लेकिन मैं नहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे साथ में है उसके द्वारा। Paul worked hard. और पौलुस जो है बहुत मेहनत किया। Harder than any one of them. और उनमें से सबसे ज्यादा मेहनत उसने And किया। Paul says, yet not I, but the grace of God. और पौलुस कहता है कि फिर भी मैं नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे वो प्रोत्साहन दिया। When the grace of God is there, you don't see a people just sitting down and wasting their time. They are going into mission, sharing the gospel, planting churches. They are doing the will of God. और जब परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर कार्यरत होता है आप देखते हैं कि लोग बस बैठते नहीं हैं, ऐसे समय बर्बाद नहीं करते बल्कि जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का कार्य करते रहते हैं। So I want to ask you, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, are you prepared for mission? क्या आप मिशन के लिए तैयार हो? Are you letting the grace of God work in you? क्या परमेश्वर का जो अनुग्रह है आप में कार्यरत होने के लिए उसे मदद कर रहे हो? To will and act according to God's purpose? और परमेश्वर के मकसद के अनुसार क्या आप उस कार्य में बढ़ना चाहते हो? So I want to encourage you. तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता The हूँ। grace of God will enable you to fulfill the plan and the purpose He has for you. और परमेश्वर का जो योजना और जो बातें हैं आपके जीवन में मकसद है वो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आप उसे पूरा होते हुए देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। What else Barnabas see?
और क्या बरनबास ने देखा? The last one. और आखिरी मुद्दा, He saw people that was generous and resourceful. उसने देखा ऐसे लोग थे जो संसाधन वाले थे और वो उदार भी थे। It says verse 28. और 28वें वचन, Agabus came. One of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. Verse 29. The disciple, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. And this they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Paul. This Gentile church quickly became a generous church. और यह जो अन्य जातियों की एक प्रकार से कलीसिया थी, वो उदार हो गई, देने वाली कलीसिया बन They गई became a resourceful church. और वो संसाधन भेजने वाली कलीसिया हो गई। When they heard there's going to be a famine in Jerusalem and Judea, they said, let's help them. Let's take up an offering and let's help them. और जब उन्होंने जाना कि यरूशलेम और जुड़िया में वहां पर अकाल पड़ने वाला है, तो आइए हम कुछ इकट्ठा करते हैं, हमारे पास जो है वो उनको देते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। They had a global outlook. और उनका एक प्रकार से ऐसा दृष्टिकोण था जो दुनिया को लेकर था। They had an eternal outlook. और उनके पास एक अनंत काल को लेकर ऐसा दृष्टिकोण They था। didn't want to just gather for themselves. They said, I'm here because I want to be a resource to others. और वो सिर्फ अपने लिए है बातें नहीं चाहते थे, बल्कि वो इस प्रकार से बदली हो गए कि वो चाहते थे कि दूसरों तक सारी बातें पहुंचना आवश्यक है। They became so generous. और वो इतने उदार हो गए। You know, grace of God makes you an open-handed person. और परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आपको उदार व्यक्ति बनाता है। If you want to see the grace of God at work, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कार्यरत है या नहीं, you will see a people who are giving. आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो देने वाले हैं, Because it reflects the character of God. क्योंकि वह परमेश्वर का जो स्वरूप है वो प्रकट करता है। It's in John 3:16, God so loved the world that he gave. और यूहन्ना 3 के 16 अध्याय में 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने दे दिया। He gave his only begotten son. उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। That was grace of God in action. और यह परमेश्वर का अनुग्रह जो कार्य में हुआ। You know, in John chapter 1 it says, you know, Jesus Christ came with grace and truth. और यूहन्ना के पहले अध्याय में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा यीशु मसीह यहाँ पर आया। And he showed that by giving himself to die on the cross. और उसने वो बात को करके दिखाया, अब क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करके दिखाया। Even at the weakest moment on the cross, when he was in excruciating pain, he showed grace to that thief who was on his right side. और वह अपने उस क्रूस पर इतने बहुत ही कठिन और दर्द भरी स्थिति में था, तब भी उसने वहां पर क्रूस पे लटके हुए दूसरा एक जो था उसको उसने अनुग्रह दिखाया। Okay, Jesus showed grace and he was mindful of others all the time. और उसने अनुग्रह दिखाया उस पर, और हर समय वह दूसरे लोगों को लेकर अनुग्रह दिखाता है। Grace of God makes us generous. और परमेश्वर का अनुग्रह है हमें उदार बनाता है। Grace of God enables us to live with eternity in our hearts. और परमेश्वर का अनुग्रह अनंत काल की बातों को लेकर हमें वो हमारे हृदय में डालता है। Hallelujah. हालेलुया। I want to finish here. और यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। What did Barnabas see? तो बरनबास ने क्या देखा? He saw people who celebrated the gospel. और उसने ऐसे लोगों को देखा जो सुसमाचार को लेकर आनंद कर रहे थे। He saw people who were excited about diversity. और ऐसे लोगों को देखा जो विभिन्नता को लेकर आनंद कर रहे थे। He saw a community of the Spirit. और वहां पर आत्मा के समाज को देखा। He saw people who were released into their giftings. और उसने देखा कि लोग अपने अपने वरदान में आगे बढ़ रहे हैं। He saw people who were open to the apostolic and the prophetic Ephesians 4 ministries. और वहां पर उसने देखा कि प्रेरितों के अध्याय के चौथे अध्याय में जो वरदान है वो लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। He saw people who were prepared for mission.
और उसने देखा कि ऐसे लोग थे जो तैयार थे मिशन के कार्य करने के लिए। And finally, he saw people who were generous and resourceful. और अंत में उसने देखा कि वहाँ ऐसे लोग थे जो उदार थे और संसाधन से भरे हुए थे। God wants us to respond. और परमेश्वर चाहता है कि हम इसे प्रतिक्रिया He दें। wants to ask you this question. वो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है, Are you thrilled and motivated by the grace of God? क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह से प्रोत्साहित और उत्तेजित हो गए हैं, Or are you motivated by law and rules and regulations? या आप प्रोत्साहन पाते हैं व्यवस्था और नियम ऐसी बातों को लेकर? And God wants us to be people who are motivated by the grace of God. और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग बने जो अनुग्रह के द्वारा प्रोत्साहित और प्रेरित हो, Because the grace of God will see us through till the end. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ आखिरी मोड़ तक कार्य करते The रहेगा। grace of God will win more and more souls for God. और परमेश्वर का अनुग्रह है वो परमेश्वर के लिए और खोए हुओं को इकट्ठा करेगा। So how do we respond? Be ever so grateful for the grace of God. और हमेशा तत्पर रहो धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर। You know, be generous in your worship. और अपने आराधना में उदार हो जाओ। You know, celebrate the gospel. और सुसमाचार को लेकर आनंद करो। Extend the grace to others. और अनुग्रह दूसरों को भी दिखाओ। Don't be quick to judge others. और दूसरों को न्याय करने के लिए इतने जल्दी से नहीं करो। Don't reject or right of anybody. और किसी का तिरस्कार या उनको नीचा नहीं करो उनकी कुछ कमियों की वजह से। Follow the Spirit. आत्मा की अगुवाई में चलो। Have a sober judgment about yourself. और अपने आप को लेकर एक सही समझ होने दो। Walk humbly before God. परमेश्वर के सामने नम्र होकर चलो। Don't let anyone condemn you. और आपको कोई दोषी ना ठहराए। Honor others where honor is due. और जहाँ पर आदर देना है वहाँ पर दूसरों को जरूर आदर देना। Speak about your weaknesses more than your strength, because at the end of the day, it's the grace of God that is at work. और आपकी कमजोरियों की ज्यादा बातें करो, ना कि आपके ताकत की बातों को, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसी प्रकार से कार्य करेगा। Barnabas saw the grace of God at work. और बरनबास ने देखा परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पर कार्य कर रहा है। And my prayer is that when people visit One Nation Church or our churches, they will see the grace of God at work. और मेरी प्रार्थना यह है कि जब लोग हमारी कलीसिया को या रिजल्स बियॉन्ड की कलीसियाओं को भेंट देंगे तब वो परमेश्वर के अनुग्रह को वहाँ पर कार्य में देखेंगे। So let's put this value into practice. तो आइए हम यह जो मूल्य है उसको हमारे जीवन में लागू करेंगे। Let's be thrilled and motivated by the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम प्रेरित और प्रोत्साहित हो जाएंगे। And as Paul says in 2 Corinthians 13 verse 14. और जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में 14वें वचन में, It says, may the grace of our Lord Jesus Christ, और परमेश्वर का अनुग्रह, may the love of the Father, और परमेश्वर पिता का प्रेम, and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with you. तुम्हारे साथ रहे।